بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں آپ کے من پسندیدہ کوئز شو سوالوں کے سفر میں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگوں سے بیجا بحث مت کرو, آپ کی آبرو ختم ہو جائے گی. آئیے اسی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں آج کے پہلے مسافر جناب محمد باقر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد باقر, آپ کی پڑھائی کہاں تک پہنچی؟ 6th standard. 6th اسٹینڈرڈ, ماشاء اللہ. اور پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, ویری گڈ ویری گڈ. اور آپ نے دینی تعلیمات کہاں سے حاصل کی ہے؟ کتابوں سے اور مجلسوں سے. کتابوں سے اور مجلسوں سے, ماشاء اللہ. ہم دعا کرتے ہیں آج کا یہ سفر آپ کے لیے آسان رہے. شروع کریں؟ جی. پہلا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, نماز میں اس ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات اربع. تسبیحات اربع. میں ناظرین کے لیے ذرا 4 آپشنز پڑھ لیتا ہوں. آپ کے آپشنز ہے اے تسبیحات اربع, بی ذکر قنوت, سی ذکر رکوع, یا ڈی ذکر سجود. اور سوال سنتے ہی بے ساختہ محمد باقر صاحب نے کہا اے تسبیحات اربع. محفوظ کر لوں؟ جی. شیور؟ جی. اوکے کمپیوٹر پلیز اے تسبیحات اربع کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, اے تسبیحات اربع از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ, پہلا سوال ہو گیا. آگے بڑھے. جی. دوسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. امام حسین علیہ السلام کے لیے کس نے فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو؟ اے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, بی امام علی علیہ السلام, سی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ سی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محفوظ کر لیں؟ جی. اوکے کمپیوٹر پلیز سی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, سی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. رسول خدا امام حسین کے کیا لگتے تھے؟ نانا. نانا. اوکے ویری گڈ, ماشاء اللہ. پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو؟ جی. کیا تیاری کی آپ نے یہاں کوئز میں آنے سے پہلے؟ بہت ساری مجلسیں سنی, کتابوں سے تعلیم حاصل کری. ہاں, لگ بھی رہا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو, کیونکہ یہ جملے اکثر مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو. آگے بڑھے. جی. تیسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. یہ جنرل نالج کا سوال ہے, ایک آڈیو ویژول سوال ہے. اس پرندے کی تصویر کو دیکھو اور ہمیں بتائیے کہ یہ کون سا پرندہ ہے. آپ کے آپشنز ہے اے پیکاک, بی پیرٹ, سی ایگل, یا ڈی ولچر. سی ایگل. سی ایگل. یس. شیور؟ یس. محفوظ کر لوں؟ جی. اوکے کمپیوٹر پلیز سی ایگل کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, سی ایگل از دا رائٹ آنسر. ماشاء اللہ. تو دینی تعلیمات بھی صحیح جگہ پہ چل رہی ہے اور جنرل نالج بھی صحیح چل رہا ہے. تیزی کے ساتھ آپ نے 3 سوال پورے کر لیے. آگے بڑھے. جی. چوتھا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. کس امام نے فرمایا فزت ورب الکعبہ؟ اے امام جعفر صادق علیہ السلام, بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, سی امام علی علیہ السلام, یا ڈی امام علی النقی علیہ السلام. سی امام علی علیہ السلام. سی امام علی علیہ السلام. جی. شیور؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. فزت برب الکعبہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور آپ کا ماننا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا. چیک کر لیں. جی.
ओके कंप्यूटर प्लीज सी इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। मोहम्मद बाकिर, आपने जवाब तो बहुत कॉन्फिडेंटली दिया था, लेकिन जब मैं वेरीफाई कर रहा था आपसे, आप डगमगा गए थे। कितने परसेंट श्योर हो? 199%। 99 या 100%? मुकम्मल यकीन है। तो फिर चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? मुस्कुराइए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। माशाल्लाह। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये जुमला। कब फरमाया था, कुछ आइडिया है? 1400 साल पहले। हाँ, तकरीबन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो भी फरमाया होगा वो 1400 साल पहले ही होगा। ओके, लेकिन कौन से वाक़ये के वक्त ये फरमाया था मैं बता देता हूँ। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वो ज़रबत लगी जिससे उनका कत्ल हुआ था, तो ज़रबत लगने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं कामयाब हो गया। आगे बढ़े जी। लेवल 1 का आखिरी सवाल, 5वां सवाल सवालों के सफर का आपकी खिदमत में पेश है। इनमें से कौन सी नमाज में सूरह हम्द और दूसरा सूरा आहिस्ता पढ़ना चाहिए? ए नमाज ज़ोहर, बी नमाज मगरिब, सी नमाज फज्र या डी नमाज इशा। ए नमाज ज़ोहर। ए नमाज ज़ोहर? यस। पक्के? श्योर। महफूज कर ले, जी। कोई डाउट नहीं है? नो। ओके कंप्यूटर प्लीज ए नमाज ज़ोहर को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। और ये बिल्कुल सही जवाब है। नमाज ज़ोहर और नमाज असर में सूरह हम्द और दूसरा सूरा आहिस्ते आहिस्ते अदा किया जाता है। माशाल्लाह। और इसी के साथ आपका लेवल 1 मुकम्मल हो चुका है। कैसा था लेवल 1? इजी। इजी था? यस। और लेवल 2 भी इजी होगा? आई डोंट नो। यू डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इस सफर को जारी रखेंगे लेवल 2 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा मोहम्मद बाकिर साहब ने अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया था और बहुत खूबसूरती के साथ मुकम्मल किया। ना कोई लाइफलाइन, ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई सोचना, बस सवाल आया, जवाब आया, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं यही हौसला, यही कॉन्फिडेंस आपका बाकी रहे लेवल 2 में। शुरू करें? जी। छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने किससे कहा कि ये मेरे जद का नाम है या तुम्हारे जद का? ए उमर साद, बी शिम्र इब्न ज़िलजौशन, सी यजीद इब्न मुआविया या डी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। सी यजीद इब्न मुआविया। श्योर? जी। महफूज कर ले, जी। एकदम कॉन्फिडेंट? यस। ओके कंप्यूटर प्लीज सी यजीद इब्न मुआविया को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी यजीद इब्न मुआविया इज द राइट आंसर। क्या वाकया था ये? आपने कहा आप मजलिस से काफी अटेंड करते हो, तो कहीं ये सुना है? जी जी। जब बीबी जनाब ज़ैनब को बंदी बना कैद करके शाम में लेके गए थे, तो इमाम में ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था। तो फिर उन्होंने पूछा, जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, तो उन्होंने पूछा कि ये किसका नाम है, मेरे जद का नाम है कि तुम्हारे जद का? माशाल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शाम में खुतबा दे रहे थे। उनके खुतबे को स्टॉप करने के लिए अजान बुलंद की गई। तो जब अजान इस मंजिल पे पहुंची कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये मेरे जद का नाम है या तेरे जद का? यजीद से। आगे बढ़े? जी। 6 सवाल हो गए, 9 बाकी।
सातवां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये एक ऑडियो सवाल है। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। आपको ये बताना है ये किस सूरे की आयत है। क्या आप रिप्ले कर सकते हैं? हाँ, मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूं, फिर हम ऑडियो वापस प्ले करेंगे। ए सूरे बय्यना, बी सूरे कारिया, सी सूरे जिलजाल, या डी सूरे फील। ओके कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। सातवां सवाल। नाजरीन, पहली बार मोहम्मद बाकिर ने तकरीबन कुछ लम्हों की सांस लिए सवाल के बाद, वरना अक्सर सवाल के पीछे जवाब चिपका हुआ ही था। रिप्ले ऑडियो। ओके कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। बी सूरे कारिया। महफूज कर लो। जी। श्योर हो कि डाउट में हो? आप बड़े घबरा के कह रहे थे। एक बार वापस। एक और बार प्ले कर दूं? कंप्यूटर एक और बार प्ले कीजिए प्लीज। सूरह कारिया। बी सूरह कारिया। यस। इस बार थोड़ा मुस्कुरा के कहा है तो मैं फिर से नहीं पूछूंगा। महफूज कर लूं? जी। ओके कंप्यूटर प्लीज बी सूरह कारिया को महफूज कर ले। मोहम्मद बाकिर साहब, अगर आप इस शो में कभी भी डाउट में हो तो आपके पास 3 लाइफ लाइन्स मौजूद है। 50-50, फ्लिप, डबल फ्रीज। इसे इस्तेमाल करने में संकोच न करें, यह आपकी मदद के लिए ही है। चेक कर लूं मैं आपका जवाब? कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। वमा अदराका मल कारिया, सूरह कारिया की तीसरी आयत है। मोहम्मद बाकिर साहब, आप इस बार भी सही हो, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिया तो मल कारिया, वमा अदराका मल कारिया। थोड़ी सी देर के लिए आपकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। यस। खास करके जब कोमल भाई कहते हैं कि ऑप्शंस है आपके पास, लाइफ लाइन्स है, ये है वो है, बट अगर आप जानते हो आप सही हो तो आप सही हो। 3 लाइफ लाइन अभी भी मौजूद। तकरीबन आधा सफर मुकम्मल हो गया। 7 सवाल हो गए, 8 बाकी है। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग के लिए फरमाया कि ज़ैद बिन रुवाहा के बाद लश्कर के सरदार जनाब जाफर तैयार होंगे? ए जंग मुता, बी जंग अहज़ाब, सी जंग खैबर, या डी जंग खंदक। ए जंग मोता। ए जंग मोता। श्योर? यस। महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर प्लीज ए जंग मोता को महफूज करे। कितने % श्योर हो? 99%। 99%। और जब भी आप 99% श्योर होते हो आप बिल्कुल सही होते हो, क्योंकि ये जंग मोता में ही फरमाया था कि ज़ैद बिन रवाहा के बाद लश्कर के सरदार जनाब जाफर तैयार हो गए। तो इतिहास तो बराबर पढ़ के आए हो आप, माशाल्लाह। 8 सवाल हो गए, 7 बाकी। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो कौन से नबी है जिन्हें परिंदों की जबान का इल्म सिखाया गया? ए जनाब लूत अलैहिस्सलाम, बी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, या डी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। डी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। डी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। Yes. श्योर? 50%। 50%।
3 लाइफ लाइन्स है, 9वां सवाल है। अगर वो 50% थोड़ा सा ये साइड पे है तो फिर मैं, आप इजाजत दे दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 99% हो गया। 99% हो गया। यस, इतना जल्दी कैसे जाता है 50 से 99? अपने पर हमको ट्रस्ट है, भरोसा है। माशाल्लाह, आपको भरोसा है कि जब भी कोमल भाई लाइफलाइन के लिए बोलते हैं तो यहाँ पर लाइफलाइन नहीं लेने का। चलो महफूज कर लेते हैं। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को महफूज करें और हमें बताइए कि यह सही जवाब है या नहीं। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही परिंदों की जबान का इल्म दिया गया था। माशाल्लाह, 9 हो गए। लेवल 2 का आखिरी सवाल, तैयार हो? यस। 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए वजू का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है। ए हाथों का धोना, बी मुंह का धोना, सी सर का मसा या डी पैर का मसा। डी पैर का मसा। डी पैर का मसा बिल्कुल सही जवाब है। माशाल्लाह, 10 सवाल हो गए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हो। दोनों लेवल मुकम्मल हो गए हैं और तीनों लाइफलाइन महफूज है। फकत बचे हैं 5 सवाल और मदद के लिए 3 लाइफलाइन। लेकिन लेवल 3 में आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह सकता हूं कि एक ड्रीम रन था हमारा। मोहम्मद बाकिर 10 सवाल बिना सोचे, बिना लाइफलाइन इस्तेमाल करे हुए तेजी के साथ उन्होंने मुकम्मल कर लिए। पर क्या ये ड्रीम रन लेवल 3 में बाकी रहेगा? कुछ ही देर में पता चलेगा। तैयार हो मोहम्मद बाकिर? यस। तीनों लाइफलाइंस आपकी मदद के लिए है। ओके। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो इसका इस्तेमाल कर ले। ओके? ओके। 11वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी ने पूछा आयत तत्हीर के बारे में अल्लाह के रसूल अहले बैत कौन है? ए अबू अय्यूब अंसारी, बी खुज़ैमा इब्न साबित, सी अबू ज़र गफ्फारी या डी अबू सईद खुदरी। अब मरहला एक लेवल ऊपर चल चुका है। फ्लिप। फ्लिप। यस। इस सवाल को रद्द कर दे। यस। कंप्यूटर, हमारे दोस्त मोहम्मद बाकिर साहब, जिन्होंने पिछले 10 सवाल में आपसे कोई मदद ना चाही, अब वो चाहते हैं कि आप इतने मुश्किल सवाल उनसे ना पूछे, इस सवाल को रद्द कर दे। ओके मोहम्मद बाकिर, ये सवाल रद्द हो गया। लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? डी अबू सईद खुदरी। डी अबू सईद खुदरी। महफूज कर ले। यस। अब तो कोई रिस्क ही नहीं है। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए क्या इसका सही जवाब डी अबू सईद खुदरी था? यस, इसका सही जवाब अबू सईद खुदरी था। कोई बात नहीं, आप गेम में हमारे साथ है। ये एक ही लम्हा है सवालों के सफर में जब सही जवाब आने पे अफसोस होता है। आइए 11वां सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। मुहद्दिसा जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है, उसके क्या माने हैं? ए हिफाजत करने वाली, बी मलाइका से बात करने वाली, सी उम्मत को निजात दिलाने वाली या डी खैरात करने वाली। फिफ्टी 50-50। 11वां सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। कंप्यूटर, 11वें सवाल पे फिर मोहम्मद बाकिर साहब आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब
हटा दें। आपके बचे हुए ऑप्शंस है ए हिफाजत करने वाली या बी मलाइका से बात करने वाली। मोहम्मद बाकिर, किसके साथ जाना चाहोगे? नाजरीन, जो पार्टिसिपेंट सोचता नहीं था जवाब देने से पहले, अब वो गहरी सोच में है। लेवल 3 अपना असर दिखा रहा है। आपके दो ऑप्शंस है, ए हिफाजत करने वाली, बी मलाइका से बात करने वाली। बताइए मोहम्मद बाकिर, किसके साथ जाना चाहोगे? मुहद्दिसा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब क्या माने है इसके? ग्यारहवां सवाल और 4 सवाल इसके बाद बाकी है। बी मलाइका से बात करने वाली। बी मलाइका से बात करने वाली। यस महफूज कर लो। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी मलाइका से बात करने वाली को महफूज करे। कितने % श्योर हो? 50। पिछली बार जब आपने 50 कहा था उसके बाद 99 तक पहुंच गया था। इस बार नहीं पहुंचेगा। इस बार नहीं पहुंचेगा? नो। चेक कर ले। यस। अपनी मुस्कुराहट को बाकी रखे मोहम्मद बाकिर साहब, बी मलाइका से बात करने वाली इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करके ये भी निकल गया। यस। आगे बढ़े। यस। 12वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल रमजानुल मुबारक की किस तारीख में हुआ? ए 13, बी 15, सी 10 या डी 14? रमजानुल मुबारक की कौन सी तारीख? एक ही लाइफलाइन मौजूद है आपके पास, डबल फ्रीज। यह आपको एक के बदले 2 ऑप्शंस को महफूज करने देगा। डबल फ्रीज। ओके कंप्यूटर, प्लीज डबल फ्रीज को एक्टिवेट करे। कौन से 2 ऑप्शंस को महफूज करूं मोहम्मद बाकिर? ए बी। ए 13 माह रमजान और बी 15 माह रमजान। किसकी तरफ आपका रुझान ज्यादा है? इक्वल। इक्वल 50-50। 50-50 के 25-25-25-25। चलो आपको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, इन दोनों को महफूज कर लूं। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए 13 माह रमजान और बी 15 माह रमजान को महफूज करें। किसको पहले चेक करें? दोनों। एक टाइम पे तो एक आंसर चेक करेंगे हम, तो 13। कौन सा चेक करें? 13, क्योंकि वो ए पे लिखा हुआ है इसलिए। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या 13 माह रमजानुल मुबारक इसका सही जवाब है? नो। दूसरा। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या 15 माह रमजान हमारे यहां कोई मुकद्दस तारीख है?
ہے. 15 ماہ رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اس کا صحیح جواب C10 ماہ رمضان المبارک ہے. لیول 1 اور لیول 2 میں بہترین سفر اور لیول 3 کے اندر یہ اختتام پر پہنچا. آپ نے لیول 1 اور لیول 2 مکمل کیا. یہ رہی آپ کی انعامی رقم. ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ بھی ہمیں اجازت دیں. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ, سوالوں کے سفر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.